Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. So, my dear student, again, I'm Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi, here to discuss with you some more topics from chapter 11. As we are studying chapter 11, theory of supply, so successfully we had complete about the meaning, then supply curve, supply law of supply, its determinants, okay, and then after exception to the law of supply, movement along the supply curve, shift in supply curve, what are the reason of shift in supply curve, backward or forward, what are the effect of technology change, input price changes, excise duty, and related goods price. Yesterday and before earlier videos we had complete about all the points. So today our topic is measurement of price elasticity. Okay, it means price elasticity of supply. As far we have completed this topic in demand, so some similar things are here. In the demand chapter, we had studies that ed equals to p upon q multiply change in q upon change in p. Here the formula will be same. Es, elasticity of supply, equals to p upon q multiply change in q upon change in p. Okay, same formula we will follow, but here is some difference in both formulas. In the ed, because there is a relationship, inverse relationship between price and quantity demanded, so we had to put minus before the formula. हमें minus sign लगाना होता है because we want positive answer. But in supply there is a positive relationship between price and quantity supplied, so there is no need to put a sign of negative. Clear? So let's start. Price elasticity of supply. Price elasticity of supply is a measure of change in quantity supplied in response to change in its price. Okay, it means when there is change in own price of the commodity, so how much supply will increase or decrease. Okay, so the measurement of that percentage is known as price elasticity of supply. Clear? कि प्राइस चेंज होने से किसी भी कॉमोडिटी की सप्लाई पे कितना इफेक्ट होगा उसका खुद का प्राइस चेंज होने से, उसी मेजरमेंट को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं. सो वी हैव सिंपल फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग सिंपल स्ट्रेट वर्ड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कॉमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. दोनों की परसेंटेज को मेज़र करना ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है. सो same we have two methods: proportionate, it means percentage method, and geometric method. Clear? So proportionate method, es means elasticity of supply, so it is a ratio between the percentage change in quantity supplied and percentage change in price of the commodity. So percentage change in quantity supplied, then divide by percentage change in price. तो दोनों का जो रेशियो होगा वो ही हमारा elasticity of supply होगा. So this formula is possible in that case where direct percentage of both given, it means percentage of quantity supplied and percentage price is given. But what happened when the direct percentage is not given? So my dear student, we will change the formula, and the formula will be es equals to p upon q change in q upon change in p. Clear? p here same, initial price, initial मतलब old price जो starting में है. ओके, क्यू इनिशियल क्वांटिटी, इट मीन्स जो ओल्ड क्वांटिटी है. फिर P1 आपको गिवन होगा, P1 मीन्स न्यू क्वांटिटी. ओके, ऐसे Q1 गिवन होगा, दैट इज न्यू क्वांटिटी. क्लियर? एंड बेटा वी कैन कैलकुलेट चेंज इन क्यू. चेंज इन क्यू मीन्स Q1 माइनस क्यू, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. और चेंज इन P मीन्स न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस. तो द फॉर्मूला विल बी ES इक्वल्स टू P अपॉन क्यू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन. वी कैन अप्लाई ईजिली. क्लियर? अगर तो डायरेक्ट परसेंटेज गिवन है तो वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट द आंसर, और ऑन द अदर हैंड इफ डायरेक्ट परसेंटेज इज नॉट गिवन देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. क्लियर? सो नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन वी विल डिस्कस. यस डियर स्टूडेंट, a producer offers to sell 400 units of a commodity when its price is 10. So look at the point. A producer ऑफर्स मतलब 400 यूनिट्स वो सेल कर रहा है और प्राइस क्या है 10 पर यूनिट. इट मीन्स ये Q है और ये P है. वाइल ओनली 200 यूनिट्स आर ऑफर्ड इफ़ इट्स प्राइस रिड्यूसेस टू 5. अब ये Q1 है और ये P1 है. क्लियर? इट मीन्स हमें चारों चीज़ें पता है, हमें Q भी पता है, P भी पता है, और हमें
P1 भी पता है, 1 भी पता है, तो हम चेंज इन Q और चेंज इन P कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर. सो नाउ द फॉर्मूला इज P अपॉन Q अपॉन चेंज इन P एंड आंसर इज ES equals. Clear. So dear student, this is the given answer. So now next is how can the elasticity of supply. अगर हमें इसे ग्राफ पर शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे. सो सेम here are the 5 situation और आप उनको elasticities बोल सकते हो. there are the 5 elasticities of supply. First is ES equals to 1, then ES equals to infinity, then ES equals to 0, ES greater than 1 और ES less than 1. All are the points. So जैसा आपने डिमांड में पढ़ा था सेम उसी तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे. सो बेटा व्हेन विल बी ES equals to 1, ES equals to 1 कब होगा? when the percentage change in quantity supplied is equals to percentage change in price. अगर सपोज क्वांटिटी जो सप्लाइड है आपकी वो 10% चेंज हुई है और प्राइस भी कितना हुआ है 10% चेंज, तो 10 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 1. ओके. सो ये एकदम 45 डिग्री लाइन बनाएगा. क्लियर. नेक्स्ट ES ग्रेटर देन 1, ES ग्रेटर देन 1, ES ग्रेटर देन 1 कब होगा बेटा? when the quantity supplied percentage quantity supplied is more than परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सपोज क्वांटिटी सप्लाई 20% है और प्राइस जो है वो 10% है, तो ये कितना आ गया ES आपका आ गया 2 और वो ग्रेटर देन 1 है. क्लियर. तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. ES लेस देन 1, ES लेस देन 1 कब होगा? ES लेस देन 1 तब होगा व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 10 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज़ 20. यानी कि जब क्वांटिटी सप्लाइड कम है और प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है तो इन दैट केस अगर आप इसे डिवाइड करो तो 0.5 यानी ES जो है वो लेस देन 1 है. क्लियर. उसके बाद 2 एक्सेप्शंस आते हैं बेटा. एक्सेप्शंस आर हेयर व्हेन ES इज़ 0. ES 0 मीन्स नो चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस कैन बी चेंज. तो वो इस तरीके से होगा कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है और ओनली प्राइस चेंज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट होगा और इसे हम कहेंगे ES इक्वल्स टू 0. और इन्फिनिटी कब होगा? व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, प्राइस कांस्टेंट है बट ऑन द सेम प्राइस एनी क्वांटिटी कैन बी सप्लाइड, तो ये ES आपका हो गया इन्फिनिटी. क्लियर. सो हियर आर द 5 केसेस. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ factors affecting elasticity of supply. Means what are the factors which affect the elasticity of supply. So first is nature of inputs. Nature of input means when the things are easily available in the market. तो हम कभी भी मार्केट से इनपुट्स लेंगे और सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और सप्लाई भी बढ़ा लेंगे. बट अगर जो इनपुट्स है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, सो उसकी सप्लाई कैसी होगी बेटा? उसकी सप्लाई इलास्टिक नहीं होगी. कैसी होगी? इनइलास्टिक. इलास्टिक मीन्स जब भी आप सप्लाई को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते, कम या ज़्यादा, दैट इज़ इलास्टिक. और जब आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो सप्लाई को, दैट इज़ इनइलास्टिक. ओके. नेचुरल कॉन्सेंट्रेट मीन्स भी ऐसा ही होता है. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि हियर इज़ अ एग्जांपल ऑफ वुड. टीक नाम का एक वुड होता है, उसकी जो प्लांट है उसको बड़े होने में और एक 5 to 10 ईयर्स का टाइम लगता है, तब जाकर उसकी जो वुड होती है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होती है. तो अगर हमें टीक यूज़ करनी है तो वी हैव टू वेट फॉर 5 to 7 ईयर्स. वी कांट चेंज सप्लाई अकॉर्डिंगली. क्लियर. रिस्क टेकिंग. अब जब जो लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो प्रोड्यूसर ज़्यादा रिस्क लेता है वो तो किसी भी प्राइस पर सप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए तो सप्लाई इलास्टिक है. ओके. बट जो रिस्क टेकिंग नहीं होते वो अपने हिसाब से सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते. जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई नहीं करेंगे, तो इट मीन्स उनके लिए क्या होगी? इनइलास्टिक होगी. नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर मीन्स पैरिशेबल गुड्स है तो उनकी सप्लाई कैसी होगी? लेस इलास्टिक होगी. और जो ड्यूरेबल गुड्स है उनकी सप्लाई कैसी होगी? इलास्टिक होगी. क्योंकि जैसे फर्नीचर है, सोफ़ा है, वो अगर किसी के पास सेल के लिए, तो अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो उसे होल्ड कर सकता है. लेकिन अगर टमाटो, मिल्क है और फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो उसकी सप्लाई को बहुत ज़्यादा टाइम तक हम होल्ड नहीं कर सकते, तो उनकी सप्लाई कैसी होगी? लेस इलास्टिक. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब किसी चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो सप्लाई कैसी होगी?
सप्लाई होगी इनइलास्टिक, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई इलास्टिक होगी. टाइम फैक्टर अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें तो इन द शॉर्ट पीरियड वी कांट चेंज एनीथिंग. सो सेम इन शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी इनइलास्टिक एंड इन लॉन्ग पीरियड सप्लाई विल बी इलास्टिक. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. Okay, if a producer using advanced technology, then the supply can be increased enormous. So it means supply एडवांस टेक्नोलॉजी में होगी इलास्टिक, और अगर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करे देन सप्लाई विल बी इन इलास्टिक. सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक. Okay, here are the two numerical questions which you can easily try. So this is the end of your chapter, and beta do all the discussed question in your fair notebook, and for the queries you can call me and send messages also. Okay, so stay blessed, stay safe.